नाजरीन कहते हैं गुर्बत इंसान को खुद गर्ज बना देती है। जब भूख नाचती है तो अपने प्यारों को भी उंगली पर नचा देती है। ऐसे ही एक गरीब घर की कहानी, जिन्होंने गुर्बत से तंग आकर अपनी 8 साला इकलौती बेटी को काम करने के लिए बड़े शहर में भेजा। फिर क्या हुआ और किस हाल में अपनी बेटी को वापस पाया, देखिए इस वीडियो में। तो तुम्हें हंसी किस बात की आ रही है? हंसी किस बात की आ रही है? ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਫੜ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਕੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸੁੱਕੇ ਲੱਕੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਕੜੀ ਹੋਈ ਬੱਚੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। यहाँ पे फेंक के गए 5 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਹੰਝ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬੱਚੀ ਫੌਤ ਹੋਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਸ਼ਦੀਦ ਜ਼ਖਮ ਸਨ ਪੂਰੇ ਜਿਸਮ ਤੇ, ਇੰਨੇ ਕਿ ਜ਼ਖਮ ਸਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਨਾ ਹੋ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਿਸਮ ਉਹਦਾ ਕੱਟਿਆ ਸੀ, ਗਲ ਕੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਂਗਲਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਸਨ। ਨੌ ਨਿਸ਼ਾਨ ਐਸੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਗਹਿਰੇ ਸਨ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਡਰ ਲਗੇ। कोई पता नहीं सी लगता, बच्ची तो चेहरे तो भी नहीं सी मतलब जान भी नहीं हो रही थी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लीडर टीवी और मैं हूं एनी फैसल। और आज मैं मौजूद हूं फूल नगर में, जहां पर एक फूल जैसी बच्ची जिसको घर वालों ने किसी के घर में मुलाजमा रखवाया। 8 साला मिसबा के साथ वहां पर क्या क्या सलूक किया गया वो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। एक बच्ची के खाने के ऊपर थूक कर उसको खाना दिया जाता था। उसके जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जहाँ पर उसके जख्मों के निशान नहीं थे। बच्ची के बालों को काट कर उसको इतना तशद्दुद का निशाना बनाया गया, इतना तशद्दुद का निशाना बनाया गया कि आखिरकार बच्ची दम तोड़ गई। और बच्ची की बॉडी को उसके घर के दरवाजे के पास किस तरीके से फेंक कर गई और किस तरह से घर वालों को इतला दी गई, वो तो हमें बच्ची के वालिदैन ही बताएंगे। 2500 एवज में उस बच्ची के साथ क्या क्या सलूक किया गया, आइए उसके वालिदैन से पूछते हैं। इस टाइम मेरे साथ ये बच्ची की फैमिली मौजूद है। ये बच्ची की वो वालदा हैं जिन्होंने बच्ची को चंद रुपए की खातिर एक घर में मुलाजमा के तौर पे रखवाया। लेकिन वो क्यों रखवाया, बच्ची के साथ वहाँ पर क्या सलूक होता रहा, ये हमें बताएंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की हाल था? ठीक बस थोड़ा किन्ने बच्चे ने? एक बेटी एक बेटा। 2 ही बच्चे ने ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 8 ਸਾਲ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰਖਵਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ? ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਰਖਵਾ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬੱਚੇ ਖਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਗਏ ਸਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖਿਲਾਣੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਬੱਚਾ ਖਿਲਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਖਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਗਾਇਆ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਬੱਚੀ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੋਟਾ, ਉਹਨੇ ਖੇਲਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ? ਸਰਦਾਰ ਮੇਲ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੀਵੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਲਵਾਉਂਦੀ। ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੇ? 5 ਸਾਲ ਮਹੀਨੇ। 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। 5 ਮਹੀਨੇ ਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬੱਚੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਾ ਸੀ, ਜਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦਿੰਦੇ। ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਕਦੀ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ। ਤੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ? ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ? ਬੱਚੀ ਜੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਫੋਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਐਡਰੈਸ ਸਾਡਾ ਮਾਈ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨੇ ਐਡਰੈਸ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੈਂਕ ਕੇ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੇਟ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫੇਂਕ ਕੇ ਚਲੇ? ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤਲਾਅ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਗਏ। ਤਾਲਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕੀ? ਉਹਨੇ ਤਲਾਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਫੜ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਤੇ ਨੂੰ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਉਸ? ਬੱਚੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਝ ਸੀ ਵੀ ਬੱਚੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਕੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬੱਚੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸੁੱਕੇ ਲੱਕੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਆਕੜੀ ਹੋਈ ਬੱਚੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਮੁੱਕੀ ਸੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਮੁੱਕੀ ਸੀ 3000 ਚ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਲਚ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਣੇ ਨਾ ਦੇਣੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। 1 ਮਹੀਨੇ ਵੀ तनख्वाह नहीं देती? एक बारी भी नहीं देती? नहीं देते। आप वालिद हैं बच्ची की? जी। क्या हालत थी बच्ची की उस टाइम? बच्ची के जिस्म पे कोई निशानात थे? क्या रिपोर्ट बता रही है, क्या किस हालात में मिली है बच्ची? बच्ची मिली थी या यहाँ पे फेंक के गए 5 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਫੜ ਲਓ। ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਹੰਝ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੇਖੀ ਜਦੋਂ ਸੁੱਟੀ ਚੁੱਕੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬੱਚੀ ਫੌਤ ਹੋਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਸ਼ਦੀਦ ਜ਼ਖਮ ਸਨ ਪੂਰੇ ਜਿਸਮ ਤੇ, ਇੰਨੇ ਕਿ ਜ਼ਖਮ ਸਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਕੋਈ कोई ऐसा नहीं सी भी जिंदे ते जख्म ना हो। बच्ची को दोबारा आप किसी हॉस्पिटल वगैरह में लेके गए उस टाइम? नहीं, फौत हुई थी तो कहाँ जाना था।
ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਨੇ, ਆਇਆ ਥਾਣੇਦਾਰ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੋਲਟ ਮਾਸਮ ਕੀਤਾ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਫਨਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦਫਨਾ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈਗੀ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਿਸਮ ਉਹਦਾ ਕੱਟਿਆ ਸੀ, ਗਲ ਕੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਂਗਲਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹੀ ਸਨ ਉਹਦੀਆਂ, हाथों और पैरों की दोनों की ਸਾਰੇ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਬੱਚੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਤਲਬ ਪਛਾਣ ਆ। जान भी नहीं हो रही थी। कि आपको नहीं लगता कि बच्ची काफी दिन पहले की उसके साथ ये सब कुछ हो गया हो? ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਨ ਬਣੇ ਆਕੜੀ ਹੋਈ ਇੰਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਕਦੀ ਫੌਤ ਹੋਈ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਤਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। क्या नाम है उस औरत का? ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰਸੂਲਾ, रसूला। ਸਰਦਾਰ ਮਿਲ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ। बच्ची के कान वगैरह भी कटे हुए? ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਨ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਸਿਰਫ ਕੰਨ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਨ ਹੁੰਦੇ, कमर पे? ਹਾਂ ਕਮਰ पे ਸਾਰੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ, ਸਾਰਾ ਜਿਸਮ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੀ ਨੌ ਨਿਸ਼ਾਨ ਐਸੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਗਹਿਰੇ ਸਨ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਡਰ ਗਏ। ये एक और बच्ची हमारे साथ मौजूद है। ये उस बच्ची के साथ ही उस घर में मौजूद थी। ये भी उस घर में मुलाजमा के तौर पर काम कर रही थी। इसने वो सारा सलूक होते देखा भी और अपने जिस्म के ऊपर वो सब कुछ बर्दाश्त भी किया है। इस बच्ची के निशान देखें, निशान दिखाओ बच्चे, ये देखें, ये इस इतनी मासूम बच्चियों के जिस्म के ऊपर कौन इस तरह से कट के निशान, ब्लेड क्यों यूज़ करता है, छुरियों को यूज़ करता है। ये देखें, इसके सर के हालात देखें, ये कौन लोग हैं और ये कहाँ से आए हैं और इनकी क्या तरबियत है, ये समझ से बाहर हो चुका है। इस बच्ची के सर के बाल काट दिए गए हैं, पीछे निशान देखें, इसकी गर्दन पे निशान देखें। ये इतने मासूम बच्चे, चाहे वो आपके हैं चाहे किसी गरीब के हैं, लेकिन उस बच्चे को उसी तरह से दर्द होती है जिस तरह से आपके अपने किसी बच्चे को दर्द होती है। मैं पंजाबी विच बोल लेनी है, मुझे दस, मैनू ये दस कि उनके नाल तू भी काम करती सी कि अलग अलग करते थे हम। अलग अलग थे, तो आपके साथ क्या सलूक होता था वहाँ पे? ठंडे चूस मार कर बगैर दोनों वाशरूम बगैर तप्पे लगाने, क्या करते थे? वाशरूम बगैर होते तप्पे लगाने थे घर के सारे काम करती थी। हाँ जी, कपड़े। आपको आते हैं घर के सारे काम? हाँ जी, या उन्होंने सिखाए थे? उन्होंने सिखाए थे पहले। उन्होंने पहले सिखाए थे। तो ये मारपीट क्यों करते थे आपके ऊपर? जब गलत काम हो जाता आप करते थे, जब खाना देते थे उसके पैक कर देते थे। खाने में थूक फेंक कर देते थे, क्यों? पता नहीं। ये इससे बड़ी कोई जहालत नहीं हो सकती। आप लोग यकीन करो, ये कितनी गंदी आपके माँ बाप ने तरबियत किया आपकी, इतने कुछ जाहिल हो आप लोग, खाने में थूक कर देते हो। लानत है आप लोगों के उस रिस्क पर जो आप लोगों के घर में आता है और आप लोग इन बच्चों को उस खाने के अंदर थूक कर देते हो। यकीनन आप लोगों तक भी वो खाना उसी तरीके से पहुंचता होगा जिस तरीके से आप इन तक पहुंचाते हो। खाने में थूक कर फेंक देते थे आपको, तो आप लोग खा लेते थे वो खाना? नहीं, हम नहीं खाते। मारते क्यों थे आप? ठंडे चूस मत पर गलत हम करते नहीं, एक दिन हो जाता दूसरे दिन फिर भी मारते थे। तो आपने कभी अपने घर वालों से अपनी अम्मी से बात करने की कोशिश नहीं की? नहीं, हम कहते थे बाजी अम्मी अब्बा से बात कराते, कहते नहीं कराते, दवाई अम्मी अब्बा का नंबर नहीं है। मिसबा से आप मिलती थी वहाँ पे? नहीं, एक दिन मिली थी बस। तो मिसबा ने आपको बताया उसके साथ क्या करते हैं? नहीं, ये आपके सर के बाल क्यों काटे उन्होंने? क्योंकि उन्होंने कहा इसके बाल बड़े हैं, कटिंग करा दी इसकी, इसके सिर में जो है मैं सिर में नहीं थी, चप गई थी। उसने कहा इसके सिर में जो है कि कटवा देते हम, इसके बंदे ने कहा, तो इसके बंदे ने फिर उस बार में बेल्टों से मारा था। ये सर पर किस चीज से मारा हुआ है आपको? डंडों से, डंडों से और बेल्टों से? छुरियों से। आप रोती नहीं थी, चीखती नहीं थी, ये नहीं कहती थी कि छोड़ दो, मैं बच्ची हूँ, मेरे साथ ना करो, ये कभी नहीं कहा आपने? ये कहा था मैंने, छोड़ते नहीं थे। कौन कौन मारता था उस घर में आपको? बस उसकी बीबी, उसका मियाँ बीवी दोनों मारते थे। बच्चे कितने थे उनके? 2। कितनी उम्र थी उनकी? मुझे नहीं मालूम क्यों। छोटे थे वैसे? आप उनको संभालती भी थी साथ? हाँ जी। क्या नाम है? मोहम्मद अली। मिसबा तुम्हारे भाई के घर कब से थी? मिसबा जो है ना, मेरे भाई ने रखवाई हुई थी, मुझे रखी दी थी, मैं अपनी वालदा के साथ होता हूँ। तुम्हें रख कर दी हुई थी? जी, कुछ मेरे पास रही है वो मिसबा। क्यों उसके ऊपर इतना तशद्दुद किया? मैंने कोई तशद्दुद नहीं किया, ना उस बच्ची के ऊपर कोई तशद्दुद नहीं किया। उस बच्ची की डेथ कैसे हुई? उस बच्ची की डेथ ऐसे हुई कि वो सीढ़ियों से गिर गई थी, उसके जिगर और गुर्दों का मसला था जिसमें तिबी मौत उसकी हो गई। जिगर और गुर्दों का मसला था, तो जिस्म पे निशानात पड़ गए सारे मार के? तो उसका इलाज करवाते ये रहे। इलाज करवा रहे थे उसका? सर के बाल क्यों काटे उसके? सर के बाल क्यों काटने थे हमने उसके? क्यों कटे हुए हैं? खुद उसने काटे? बाल क्यों कटवाने हैं उसके? क्यों काटे? यही तो पूछ रही हूँ, क्यों काटे? बाल क्यों कटवाने? कटिंग करवाई थी उसकी,
जो कटिंग करवाते हैं वही करवाई थी, बाल क्यों काटने हैं हमने? अपनी क्यों नहीं उस तरह की कटिंग करवा लेते? अपनी क्यों नहीं करवा लेते? वो अपनी भी करवाते हैं, क्यों नहीं करवाते? उस तरह के करवाते हो? उस तरह के करवाते हो? सीढ़ियों से गिरने के बाद बच्ची के जिस्म पे छुरियों के निशान होते हैं। छुरियाँ कौन लगाता है? कोई उसके हाथ और पाँव की उंगलियां कैसे कटी? कोई लगा सकता है? लगाया ही है। तू काम उठती ऐसे तो नहीं लग जाती। तुम लोगों की तो नहीं कांपी, रू तो उसके घर वालों की कांप गई है, रू तो उसकी माँ की कांप गई है, उसके बाप की कांप गई है, जिसने इकलौती बेटी तुम लोगों के हवाले कर दी। उनके नसीब गंदे थे, उनकी किस्मत खराब थी। कंपनी कांपी के जब उन्होंने बच्ची लगवाई थी 7 साल, क्यों रखा? कितनी दफा पैसे दिए उनको महाना? कभी दिए? 25 रुपए कभी दिए? 5 माह में कितनी बार दिए? मेरा भाई करता था, उसको ही पता। वही मुझे ये बताओ, आपकी बहन के घर भी थी, वो आपके घर में भी थी, ठीक है, क्या आपकी बहन को कोई नफसियाती मसला है? नहीं, मसला नहीं, वैसी थोड़ी सी डिप्रेशन की। किस चीज का डिप्रेशन है उसको? वैसी वो शुरू से बचपन से ही ऐसी है। बचपन से ऐसी है तो आपने क्यों उसकी शादी वगैरह की, अगर आपको लगता है कि वो जहनी बीमार है तो? नहीं, जहनी मरीज बीमार नहीं है, वैसी कोई ना कुछ थोड़ी बहुत होता ही है इंसान। हाँ, परफेक्ट तो हर इंसान तो नहीं परफेक्ट होता है। अपने बच्चों को, उसके अपने बच्चे हैं? उसके अपने बच्चे भी हैं। कितने बच्चे हैं उसके? माशाल्लाह 4 बच्चे हैं उसके। 4 बच्चे हैं उसके। कभी उसने अपने बच्चों को मारा? जाहिर है वो बच्चों को भी डांटती रहती है। डांटने में और मारने में और तशद्दुद में, तीनों में फर्क है। जहाँ पे मारना होता है वहाँ मारती भी है। मारती भी है, इसी तरह से मारती है? नहीं, वो इस तरह क्यों मारना उसने? इस तरह बस इसी को मारती थी? नहीं, इस तरह इससे क्यों मारना उसने? नहीं मारा इसको? नहीं, इसको नहीं मारा उसने। किस बात का गुस्सा निकालती थी वो? क्या गुस्सा था उसको? बच्ची की जो असल वजह है ना, जो डेथ की, वो उसकी तिबी मौत है उसकी, जो हुई है उसकी। अगर वो 5 माह से तुम लोगों को लगता था वो बीमार है, क्यों नहीं उसके घर वालों को इतला दी? उसके घर वालों को इतला दी, उसको जिसने लगवा के दी उसको भी कहा था। क्यों नहीं वो लेकर गए? मुझे इस चीज़ का भी नहीं पता है, क्यों नहीं लेके गए। आप लोगों ने उसका इलाज करवाया? करवाते रहे हैं, लेके गए हैं उसको। वापडे टाउन में भी करवाया, गुजरांवाला में। उसके अलावा लाहौर लेके गए, लाहौर में लेके गए, उसकी डेथ हो गई बच्ची की। सबा तुम्हारी बहन के घर की मुलाजिम? मेरी बहन की घर नहीं थी, मेरी बहन की नंद की घर। नंद के घर? तो क्यों उसने सबा के साथ ये सब कुछ किया? मुझे नहीं इस चीज़ का पता क्या किया क्या नहीं किया, ना मैंने बच्चे को देखा किस तरह के नफसियाती बच्चे। मरीज है वो कोई? मुझे कुछ भी नहीं बताया। किसको पता? मैं अपनी सिस्टर के घर आया था रहने के लिए और उन्होंने मुझे पकड़ लाया। सिर्फ वो बहन हुई है जो उनसा मेरा, वो ग्रंटर था मैं, उसने अपनी सिस्टर के घर आके दी थी। तो मैं वो मेरा इतने छोटे बच्चों को क्यों काम पर लगाया? हमारे घर तो है ही नहीं, उनके घर ही थी। खुदारा अपने घर में मुलाजमाएं रखते हैं तो उनके साथ अच्छा सलूक करें। वो बहुत मजबूरी की वजह से आप लोगों के घर में आप लोगों के सुख का बाइस बनने के लिए आते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।